Namaskar. Today in my lecture series on mechanics, I'll discuss the application of Lagrange's equations of motion for a spherical pendulum. So, in my last lecture, I told you how we apply the Lagrange's equations of motion for harmonic oscillators, in which we studied the linear harmonic oscillator and the simple pendulum. Today, I'll discuss the use of Lagrange's equations of motion for spherical polar coordinates. That simply means that if we are considering or we are describing any mechanical system in terms of spherical polar coordinates, then how will we use the Lagrange's equations of motion? So, for this, first of all, I would like to explain spherical polar coordinates, that how we transform the conventional coordinates in terms of spherical polar coordinates, or and vice versa, how the spherical polar coordinates are written in terms of conventional coordinates. So first of all, for that, as I am going to describe the motion of a spherical pendulum with the help of spherical coordinates, I would like to show you the motion of this spherical pendulum. You can see that the bob of the pendulum is always on the sphere. It is describing the path on the surface of the sphere. It will complete its oscillations on the surface of the sphere. When we were discussing the degree of freedom, then I shown you this motion. Here we will see that it is moving on the surface of the sphere. So this is all about its motion. Now we come to spherical polar coordinates. I'll explain the concept of spherical polar coordinates uh, by two perspectives. The one perspective is from geographical point of view and another is from mathematical point of view. You see, this is the globe. This is the globe. So representing the earth. This is the earth. This earth is having this axis, which is known as polar axis. It is going from one pole to another pole, right? In this, on this earth or on this globe, I have considered a coordinate system, which is the conventional coordinate system. And suppose I take this to be as x-axis and this to be as y-axis and this to be as z-axis. Then if I want to locate the position of an object on this globe, how will I locate it? First of all, on this globe, you are seeing that there are some lines which are lying horizontal, lying horizontally, and there are certain lines which are lying vertically. These are not exactly vertical. These are the curved lines. These are curves. In actual, these are curves. So, when we describe this earth, we say that we can draw some latitudes and longitudes on this earth. What are the latitudes? Latitudes are actually these parallel lines. These are latitudes. These are latitudes. These are the lines parallel to equator. We assume a line as equator. Suppose there is some equator on this globe. I will mark it like, you see, suppose this is some equator.
suppose this is the equator. I should take some other color on it. Just a minute. So suppose this is the equator. So this is one of the latitudes. This is the equator. Right? So this is the equator. It is equator. Now, I was saying that if I want to locate the position of an object on this globe or on the earth, then what I require. For example, this is my object. My object is at A. Then naturally, there will be some latitude passing through it. Similarly, there will be some longitude. These lines are called the longitudes. These are the longitudes. In latitudes, we take a reference line, which is the equator. Similarly, for these longitudes, we take one reference line, and this is the reference line, or this is the line from which Greenwich passes, right? So I am taking, suppose I am taking this line, which is the reference line among the longitudes. This is the reference line. This is the line, or this is the longitude from which Greenwich passes. So it is the reference line. Equator is reference for latitudes, and this line is reference line for longitudes. तो अगर हमें किसी ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, ए पर कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ए पर, उसका मुझे पोजीशन दिखाना है, तो मुझे उसका लॉन्गिट्यूड चाहिए, मुझे उसका लैटिट्यूड चाहिए, मुझे उसका लॉन्गिट्यूड चाहिए, और उसके अलावा एक तीसरा जो कोऑर्डिनेट है वो है इसका ऑल्टीट्यूड. दो मैंने आपको बता दिया, एक है लैटिट्यूड, एक है लॉन्गिट्यूड, और तीसरा है ऑल्टीट्यूड. पहले हम दो चीजों की बातें करते हैं, लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड की. ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो यहाँ पर है, वो ए पर हमारा ऑब्जेक्ट है. हमें ये पता करना है कि इसका लैटिट्यूड कैसे देखा जाता है. तो हम करते क्या है कि यहाँ से कोई ना कोई पास हो रहा होगा. देखो ये पास हो रहा है, ये एक लैटिट्यूड पास हो रहा है, और ये हमारा इक्वेटर है जो रेफरेंस लैटिट्यूड है. तो हम क्या करते हैं, रेफरेंस लैटिट्यूड और ये जो पास हो रहा है लैटिट्यूड, इन दोनों के बीच का एंगल जज करते हैं कि कितना है. जितना वो एंगल होता है उसी को लिखा जाता है कि ये इतने डिग्री पर है. तो वो एंगल जब हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से ट्रेस बनाते हैं, मतलब कि डायग्राम में बनाते हैं, तो वो कौन सा एंगल होता है, वो एंगल होता है, हम सबसे पहले हमारा ऑब्जेक्ट ए पर है, ए से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दिस इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम ए, राइट. पहली बात, ये जो ए पॉइंट है ये जरूरी नहीं है कि एक्स वाई प्लेन में हो, ये कहीं पर भी है, स्पेस में कहीं पर भी है, वहां से हमने एक्स वाई प्लेन पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है, तो नेचुरली ये कहीं एक्स वाई प्लेन के ऊपर है, वहां से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया. ये ए एन एक परपेंडिकुलर है, तो यदि मैं इसको मिला दूं, ओ को, ओ ओरिजिन है, ओ से यदि मैं इसको मिला दूं, यानी मुझे ओ एन लाइन मिलेगी, तो ओ एन लाइन इस पोल के साथ, ये जो पोल जा रहा है, इस पोल के साथ जो एंगल बनाएगा, दैट इज कॉल्ड एंगल ऑफ लैटिट्यूड, राइट. तो ये हमें ध्यान रखना है कि ये एंगल ऑफ लैटिट्यूड होता है, जो ये एक्स एक्सिस के साथ बनेगा एंगल. ये मैंने शायद यहाँ गलत ड्रॉ किया है, इसको मैं ठीक कर देती हूँ. ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बनता है, ये एंगल, यस, ये जो एंगल होता है, ये एंगल कहलाता है एंगल ऑफ लैटिट्यूड.
उसके बाद हमें देखना है कि लॉन्गिट्यूड कैसे डिसाइड हो। तो लॉन्गिट्यूड के लिए ये हमारा लॉन्गिट्यूड्स है, ये सारे लॉन्गिट्यूड्स हैं। एक लॉन्गिट्यूड होगा जो रेफरेंस लॉन्गिट्यूड है, और एक वो लॉन्गिट्यूड होगा जो कि ए से पास हो रहा होगा। तो हम उसको पहले ड्रॉ कर लेते हैं। जो ए से पास हो रहा है लॉन्गिट्यूड, वो ये है, ए से पास होने वाला लॉन्गिट्यूड, दिस वन। ये वाला, इन दोनों के बीच का एंगल मुझे देखना है। इन दोनों के बीच का एंगल कैसे देखा जाता है? ये जो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ये हमने मिलाया था इधर। ये जो परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, ए से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया था, उसको हमने यहाँ मिलाया था। इसी तरह ए को भी ओ से मिला दो, ओरिजिन से मिला दो, तो ये जो एंगल बनता है थीटा, ये अभी हम ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहे हैं, ये जो एंगल बनता है थीटा, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ लॉन्गिट्यूड। तो हमारे पास दो एंगल आ गए, यानी ए ऑब्जेक्ट का पोजीशन दिखाने के लिए जो फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स हैं वो हमें मिल चुके हैं, फाई और थीटा। फर्स्ट टू कोऑर्डिनेट्स कह लो या टू कोऑर्डिनेट्स कह लो, कि हमें दो कोऑर्डिनेट्स मिल चुके हैं। अब यहाँ पर एक तीसरी चीज होती है ऑल्टीट्यूड। ऑल्टीट्यूड कब एग्जिस्ट करता है? ऑल्टीट्यूड तब एग्जिस्ट करता है जब ओवरलाइंग बॉडीज होती हैं। फॉर एग्जाम्पल आप इमेजिन करो कि कोई बिल्डिंग है, राइट? तो वो बिल्डिंग जो है वो कुछ इस तरीके से है आपकी, यहाँ पर ए पर आपकी ऐसे बिल्डिंग है कोई, एक के ऊपर एक उसकी मंजिलें हैं, ठीक है? तो यदि मुझे जो सरफेस पर है अर्थ के, उसका तो ऑल्टीट्यूड होगा 0, क्योंकि ये सी लेवल से नापा जाता है। और अगर अर्थ के सरफेस से जरा भी ऊपर चला जाता है तो सी लेवल से उसकी हाइट देखी जाती है, एंड दैट बिकम्स इट्स ऑल्टीट्यूड, ठीक है? तो एक चीज पक्की है, लैटिट्यूड कुछ ना कुछ होगा ही होगा, लॉन्गिट्यूड होगा ही होगा, और ऑल्टीट्यूड जो है वो 0 हो सकता है, क्योंकि अगर वो सरफेस पर है तो ऑल्टीट्यूड 0 होगा। दूसरी चीज ये कि अगर मैं ए पोजीशन की बात कर रही हूँ, यानी ए की बात कर रही हूँ, ये जो मेरी ए पोजीशन है इसकी मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ आप देख रहे होंगे यहाँ यूनिक पोजीशन है इसकी, यानी कि यूनिक लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड होगा। कोई दूसरा ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता जिसका सेम लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड हो। एक चीज जरूर फर्क होगी, आइदर लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड, राइट? लैटिट्यूड फर्क होगा, लॉन्गिट्यूड सेम हो सकता है, लैटिट्यूड सेम हो सकता है, लॉन्गिट्यूड फर्क हो सकता है, लेकिन दोनों सेम हो ऐसा बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। और जब तीसरी चीज भी एग्जिस्ट करती है तो तीनों के साथ ये बात लागू होती है कि वहां पर आपका जो दो चीजें सेम हो सकती है, लेकिन एक कोई ना कोई चीज जरूर फर्क होगी, ठीक? तो ये तो रही पोजीशन की बात। और एंगल्स की बात जो हम यहाँ पर दिखाते हैं, इसमें जो ये है z हमारा, ये जो जा रहा है ये पोल है, ये पोल से जा रहा है, पोल से जाने वाला एक एक्स, पोल से जाने वाला z एक्सिस है। अब हम इसे मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसको मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे कहेंगे हम एक ये वाला डायग्राम आप ले लें, ये वाला डायग्राम मैंने ये ड्रॉ किया हुआ है। इस डायग्राम में आपको ये मैशेस दिखाई दे रहे हैं, जैसे यहाँ पर ये मैशेस थे, ये सब मैशेस बने हुए थे, ऐसे ही यहाँ पर ये एक पैरेलल लाइंस की हेल्प से मैश बनाए गए हैं। ये आपका एक पैरेललोग्राम टाइप का, ये एक क्यूबॉइड टाइप का एक एलिमेंट है ये मेरे पास। तो मुझे किसी एक 3 डायमेंशन में मुझे किसी एक ऑब्जेक्ट का पोजीशन बताना है इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये ध्यान रखना है हमें कि हमें स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में इसका पोजीशन बताना है, राइट? तो सबसे पहले हमने क्या किया कि जो एक ओरिजिन माना इस बॉक्स में, जहाँ कॉर्नर पॉइंट है वहां पर एक ओरिजिन माना, और वहां से हमारा ये एक एक्स एक्सिस हो गया, ये एक वाई एक्सिस हो गया, और ये जेड एक्सिस हो गया। कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स हैं, म्यूचुअली परपेंडिकुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम है ये, ठीक? एक्सिस है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर एक्सिस है इसमें। अब हमारा कोई ऑब्जेक्ट है ए, जैसे यहाँ पर हमारा एक ऑब्जेक्ट था ए, ये ग्लोब पर है तो हमने थोड़ा नीचे लिया था इसको। यहाँ पर हमारा ये ऑब्जेक्ट है, ये जो साफ साफ दिखाई दे रहा है कि एक्स वाई प्लेन में नहीं है, ये एक्स है, ये वाई है, ये पूरा हमारा एक्स वाई प्लेन है। तो इस एक्स वाई प्लेन में ये ऑब्जेक्ट नहीं है, कहीं पर भी है ये। हमने इसका एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया,
और परपेंडिकुलर ड्रॉ करने के बाद उसको मैच कर मिला दिया, यहाँ से ये मिला दिया, ठीक है। इसी तरह से हमने ओ ए को मिला दिया। अब इसमें क्या होता है कि जब हम इसको एक रेक्टेंगुलर कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ले जाते हैं और एक क्यूबॉइड पर हम इस तरह से इसको प्लेस करते हैं, तो ये जो z एक्सिस है, ये z एक्सिस क्योंकि पोल के थ्रू जा रहा है, तो इसका हम नाम रखते हैं दिस इज पोलर एक्सिस, ठीक है। जो x एक्सिस के अलोंग होता है वो कहलाता है एजिमुथ एक्सिस। तो ये एजिमुथ एक्सिस हो गया और ये पोलर एक्सिस हो गया, ठीक। अब यहाँ पर ये जो फाई था, ये फाई किसको रिप्रेजेंट कर रहा था? ये लैटिट्यूड्स को रिप्रेजेंट कर रहा था। तो उसी तरह से ये जो y है ये लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस कहलाता है ये, ठीक है। अब हम ये देख रहे हैं कि हम ये थीटा और फाई मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे बनाते हैं, किसको कहते हैं थीटा और किसको कहते हैं फाई। यहाँ पर हमारा फाई था लॉन्गिट्यूडिनल एंगल, और ये जो थीटा था, ये मतलब फाई जो था ये लॉन्गिट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा था, और ये जो थीटा था ये लैटिट्यूड रिप्रेजेंट कर रहा था। अब देखिए यहाँ पर इसमें सबसे पहले ए पर आपका ऑब्जेक्ट है, ए से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और इसको यहाँ से मिला दिया, ठीक। तो यहाँ से मिलाने के बाद जैसे इसको आपने मिलाया था और ये फाई एंगल था, बिल्कुल ऐसे ही इसको यहाँ से मिलाने के बाद जो ये एक्स एक्सिस से एंगल बनाएगा दैट इज फाई, एंड दैट इज नोन एज एजिमुथ एंगल। फाई को हम एजिमुथ एंगल भी कहते हैं, जो एजिमुथ एक्सिस के साथ बनाता है। और ये जो पूरा प्लेन है ना, ये जो पूरा प्लेन है ये एजिमुथल प्लेन भी कहलाता है, ये जो हमारा ये वाला प्लेन है एक्स वाई प्लेन, ठीक है। तो ये तो एंगल डिसाइड हो गया कि ये फाई है। दूसरी बात ये कि इसको हम लिख लेते हैं कि एजिमुथल एंगल है, ये है हमारा, ये कहलाता है एजिमुथ एंगल। अब ये तो डिसाइड हो गया, ये एजिमुथ एंगल है। ये जो दूरी है ओ एन, इसको मैंने रो कह दिया, इसका नाम रख दिया रो, कुछ भी ले सकते हो आप, इसको रो ले दिया। स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट में जहां ऑब्जेक्ट होता है, उस ऑब्जेक्ट को जब हम ओरिजिन से मिलाते हैं तो वो उसकी रेडियल डिस्टेंस होती है, हम उसको कहते हैं आर। तो इसका एक कोऑर्डिनेट हमारे पास है आर। जैसे यहाँ पर ज्योग्राफिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम 3 कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो हमारे 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड और अल्टीट्यूड। मैथमेटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से जब हम लेते हैं तो हमारा एक जो कोऑर्डिनेट होता है वो होता है रेडियल डिस्टेंस। तो आर एक कोऑर्डिनेट है यहाँ पर जो इससे देखने में फर्क लग रहा है, ये ऑल्टीट्यूड का रिप्लेसमेंट है। तो यहाँ पर एक कोऑर्डिनेट हमारा होता है आर। अब ये तो फाई तो डिसाइड हो गया। थीटा कौन सा एंगल होता है? जब आपने ओ ए को मिलाया, वो यहाँ से आप देखोगे तो अलग दिखाई देगा। यहाँ जब आप ओ ए को मिलाते हो तो ये z एक्सिस से जो एंगल बनाता है, ये जो z एक्सिस से एंगल बनाता है ये कहलाता है हमारा थीटा, विच इज ऑल्सो कॉल्ड पोलर एंगल। ये पोलर एंगल है, जो आप आर थीटा पढ़ते रहते हैं, ये उसी तरीके का पोलर एंगल है। तो ये हमारा एंगल हो गया पोलर एंगल, ठीक है। यहाँ से आप बहुत आसानी से देख सकते हो कि जो पोलर एंगल है ये कितने से कितने तक वेरी करेगा। आप ये देखो कि जो पोलर एंगल है, ये जो एंगल है ये कैसे करेगा। ये जो पॉइंट है आपका, ये ऑब्जेक्ट यहाँ कहीं हो सकता है और यहाँ तक हो सकता है ऐसे। तो ये -π/2 से π/2 के बीच में वेरी करता है। जबकि ये जो फाई है ये क्या है, ये ऐसे 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 मूव कर रहा है, इस तरह से मूव कर रहा है, पूरे सर्किल पर मूव कर रहा है। तो पूरे सर्किल पे मूव कर रहा है का मतलब क्या हो गया, ये कहाँ से कहाँ तक हो गया, 0 से 2π तक। तो जो फाई की रेंज है वो 0 से 2π होती है। ये आप ऐसे देख सकते हो ना, ये इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये 0 से 2π पूरा सर्किल बना रहा है, ये तो वो हो गया। और ये जो थीटा है ये चीज रिप्रेजेंट कर रहा है कि पोल्स में कहाँ से कहाँ तक एंगल बना सकता है। तो ये -π/2 से लेके π/2 तक एंगल बना सकता है। तो इसकी रेंज होती है -π/2 से π/2 और इसकी रेंज होती है 0 से 2π। एक तो ये चीज क्लियर हो गई। अब इसमें हम थोड़ा सा ये देखेंगे कि इसको हम निकालते कैसे। आर को निकालने के लिए हम कैसे करेंगे। आपने देखा यहाँ पे मैंने ये कर रखा है, यहाँ से आपने डाला, ये ए पर ऑब्जेक्ट था, यहाँ से आपने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और आपने इसे मिला दिया।
यहाँ पर हम एक काम और करते हैं कि जो परपेंडिकुलर का फुट होता है, इस फुट से एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन खींचते हैं वाई की तरफ, वाई एक्सिस की तरफ, और एक लाइन खींचते हैं एक्स एक्सिस की तरफ। जो एक्स एक्सिस की तरफ लाइन खींचेंगे वो वाई के पैरेलल होगी। आप यहाँ देख रहे हो आराम से, ये पैरेलल है दोनों लाइनें, ये दोनों लाइनें पैरेलल हैं, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ये आपस में पैरेलल है। इसमें कोई और कलर लेते हैं जिससे ये दिखाई दे। ये जो दोनों लाइनें हैं ये आपस में पैरेलल है, और ऐसे ही जो ये लाइन है ये इस लाइन के पैरेलल है। ठीक है, तो जहां फुट है, परपेंडिकुलर का फुट है, वहां से जब हमने इसको मिलाया है, यहाँ पे हमने मिलाया ना, यहाँ पे डाला, तो इसी पॉइंट से एक्स एक्सिस के पैरेलल और वाई एक्सिस के पैरेलल मुझे लाइनें लेनी है। इससे क्या फायदा होगा, ये कितना एंगल आ जाएगा, ये देखो, ये वाई एक्सिस के पैरेलल है, वाई एक्सिस एक्स एक्सिस से पाई बाय 2 एंगल बनाता है, तो ये भी एंगल क्या आएगा, पाई बाय 2। इसी तरह से ये जो लाइन है ये किसके पैरेलल है, एक्स एक्सिस के पैरेलल है। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से कौन सा एंगल बनाता है, पाई बाय 2, 90 डिग्री बनाता है। तो ये जो लाइन मैच हो रही है ये भी कौन सा एंगल बनाएगी, 90 डिग्री का एंगल बनाएगी। इसी में एक और चीज जो हम अभी अगले डायग्राम में दिखाएंगे, हमने ये मिलाया था, ये एक परपेंडिकुलर डाला था, फुट ऑफ परपेंडिकुलर, तो बिल्कुल इसके यहाँ पे ये जो लाइन है, ये जो मिलाई है हमने, फुट को मिलाया है, इसके पैरेलल हम यहाँ भी एक लाइन ड्रॉ करेंगे। यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ करेंगे तो वो किसके पैरेलल आ जाएगी, ये दोनों लाइन पैरेलल आ जाएंगी। अभी आप नेक्स्ट डायग्राम में देखिए उसको, ये हम बिना मैश के हमने एक डायग्राम ले लिया, इसको दोबारा से समझिए हम कैसे बता रहे हैं। ये एक बिना मैश का डायग्राम है। इस डायग्राम में हमारे पास यहाँ पर ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। देखो ये एक्स वाई प्लेन है, इसको लिख लेते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन है। ये है हमारा एक्स और ये है वाई, ये मैंने सीधे ले लिए, आप वैसे भी ले सकते हो, ओब्लिक कुछ जस्ट ये वाली लाइन मैंने जैसे हॉरिजेंटल ले लिया, आप इसको थोड़ा सा टेढ़ा ले सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले ये देखो, ये तो मेरा ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मुझे एक्स वाई प्लेन में नहीं लेना, तो मैंने यहाँ नहीं लिया इसको कहीं भी, ये कहीं पर भी है स्पेस में। इस ऑब्जेक्ट को यहाँ ओ से मिला दो पहले, और इसका नाम दे दो आर। अब इस ऑब्जेक्ट से एक फुट परपेंडिकुलर डालो, परपेंडिकुलर डाला, उसका फुट आ गया एन। इस फुट को ओ से मिला दो, ठीक। ओ से मिलाते ही ये जो एंगल बनेगा, यानी ओ एन जो एंगल बनाएगा, वो एंगल क्या बनेगा, फाई। इसको हम कहते हैं एजिमुथ एंगल। तो हम थोड़ा सा इसको लिखें अगर, तो हम ये कह रहे हैं कि कंसीडर एन ऑब्जेक्ट एट ए somewhere in space but not in xy plane. ये हमने सबसे पहली बात की। नाउ जॉइन ए विद ओरिजिन ओ। तो हमारा ओ ए क्या कहलाता है, मैंने बताया आपको, दिस इज कॉल्ड रेडियल वेक्टर, रेडियस वेक्टर। रेडियल डिस्टेंस है ये ए की फ्रॉम ओ। ओ ए हमने ले लिया आर। ये ओ ए की लेंथ की बात हो रही है अभी, यानी मॉड्यूलस ऑफ ओ ए की बात हो रही है। तो मैं इसको ऐसे मॉडुलस फॉर्म में नहीं लिख रही, केवल ऐसे ही ओ ए की डिस्टेंस जो है वो आर है। नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर ए एन फ्रॉम ए टू एक्स वाई प्लेन। ये मैंने बताया था आपको, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दीजिए ए से एक्स वाई प्लेन पर, ठीक है। जॉइन एन ओ। अब एन परपेंडिकुलर डाला था, इसको ओ से ज्वाइन कर दिया, ओरिजिन से ज्वाइन कर दिया, एन ओ इज इक्वल टू रो। ये हमने माना है, इसकी वैल्यू मान ली, सपोज इट इज रो।
Now lines draw lines from N to y-axis parallel to x-axis. क्या कहा है मैंने? N से y-axis पर लाइन ड्रॉ करो. ये जो N है यहाँ से y-axis पे लाइन ड्रॉ करो, लेकिन लाइन होनी कैसी चाहिए? पैरेलल टू x-axis होनी चाहिए. इसी तरह मैं दूसरी लाइन लिखूंगी, ड्रॉ लाइन फ्रॉम N to x-axis and parallel to y-axis. Draw line, this is line not lines, this is line. Draw line from N to x-axis and parallel to y-axis. ये क्या है एक्चुअल में? जो हमने ये ड्रॉ किया, इसको मैं Q नाम दे दूं. अगर सपोज दिस इज Q, तो ये क्या है? OM क्या है? OM है इंटरसेप्ट ऑन x-axis. देन OM is equal to x, ये जो है OM, this is OM is x and OQ is y. ये x इंटरसेप्ट है और वो दूसरा y इंटरसेप्ट है. इतना करने के बाद अब एंगल की बात कर लेते हैं. क्या होगा एंगल? एंगल NOM विल बी फाई. यानी कि जो आपने लाइन मिलाई, ON मिलाया, वो x एक्सिस के साथ जो एंगल बनाएगा वो हो गया फाई. दिस इज कॉल्ड एजिमुथ एंगल, क्योंकि ये एजिमुथ एक्सिस के साथ बना है. एंगल, अब हम दूसरे एंगल की बात करें. AOP is theta. This is called polar angle. Naturally, this is your polar axis and this is your azimuth axis. और ये जो होता है ये रेडियल एक्सिस होता है. ये जो होता है ये रेडियल एक्सिस होता है जो OA को मिला रहा है. नेक्स्ट, what will be this angle? What will be this angle? This is pi by 2. क्यों? क्योंकि ये जो लाइन है MN ये पैरेलल टू y एक्सिस है और ये x एक्सिस है, तो x एक्सिस से y एक्सिस क्या बनाएगा? पाई बाय 2 बनाएगा. ऐसे ही ये जो एंगल होगा, हालांकि हमें इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, ये जो एंगल होगा ये भी होगा पाई बाय 2. ठीक है, तो इसको लिखते हैं हम एंगल OMN कितना है? पाई बाय 2. अब यहां पर हम एक लाइन और ड्रॉ करेंगे. जो हमने ON को ज्वाइन किया था उसके पैरेलल हम A से एक लाइन डालेंगे. ड्रॉ ए लाइन फ्रॉम A to Z axis and parallel to ON. ये जो ON है, O से N, इसके पैरेलल हमने एक लाइन ड्रॉ कर ली. लेट द लाइन बी AP. तो इसके बाद क्या होगा? जो OP लेंथ है, this OP length will be Z. This is Z. जैसे हमने यहां बताया आपको, ये X है, ये Y है
क्योंकि y एक्सिस का इंटरसेप्ट है, ये x एक्सिस का इंटरसेप्ट है और ये z एक्सिस का इंटरसेप्ट है। तो OP किसके बराबर हो गया? OP इज इक्वल टू z। दूसरा एंगल OPA, देखो ये क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि OPA एंगल कितना होगा। ये है एंगल OPA, दिस इज एंगल OPA, दिस इज एंगल OPA, दिस वन। ये जो लाइन है AP, AP जो लाइन है हमारी, ये जो AP लाइन है, ये किसके पैरेलल है? ON के। और ON कहाँ पे लाई कर रही है? XY प्लेन में। XY प्लेन में लाई करने वाली कोई भी लाइन Z एक्सिस के साथ कौन सा एंगल बनाएगी? 90 डिग्री, क्योंकि XY प्लेन के परपेंडिकुलर है ना Z एक्सिस। तो इसमें जो भी लाइन लाई करेगी, जो भी, वो इससे क्या बनाएगी? 92 बनाएगी। और ये लाइन ON और PA पैरेलल है, तो जो ON बनाएगी वही PA बनाएगी। ON बना रही है 90 डिग्री का एंगल Z एक्सिस के साथ, तो ये भी एंगल कौन सा हो गया? Z एक्सिस के साथ 90 डिग्री, तो ये भी 90 डिग्री का एंगल फ्रेम होगा। दिस इज π/2। ठीक है, तो हमारा जो मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव हुआ, उस मैथमेटिकल पर्सपेक्टिव से ये हमारा हो गया π/2, दिस इज π/2। अब हमें ये देखना है ये A किस किस से डिस्क्राइब हुआ। नाउ ऑब्जेक्ट एट A may be represented by x, y, z। कैसे? अगर आपको A पर जाना है, A पर जाना है आपको, तो आप कैसे जाओगे? देखो, आप ऐसे जाओगे, पहले आप x ट्रेवल करोगे, ओरिजिन से शुरू करोगे ना, पहले आप x ट्रेवल करोगे, फिर आप y ट्रेवल करोगे, ये y था, इसके पैरेलल है, पहले x ट्रेवल करोगे, फिर y ट्रेवल करोगे और फिर z ट्रेवल करोगे और आप A पर पहुंच जाओगे। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि A की जो डिस्टेंसेस हैं डिफरेंट एक्सिस से, वो हमें पता करनी है। तो हमें कैसे पता चलेगी? A की डिस्टेंस x एक्सिस और फिर y के अलोंग, x के अलोंग, y के अलोंग और फिर z के अलोंग। तो ये जो x y z मैंने लिखा है, ये है आपका कन्वेंशनल में। देखो, पहले x चली और फिर ये y, और फिर उसके बाद ये चला z, दिस इज z। ये है कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट में, may be represented by x, y, z in conventional coordinates। ठीक है, एंड बाई r, यहां पर भी हम r थीटा फाई या r फाई थीटा दोनों तरह से लिख सकते हैं। मैथ्स में हम इसको r फाई थीटा लिखते हैं इन स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब एज सच तो यहां पर हमारा देखा जाए तो इसका यूनिट वेक्टर होता है r का, इसके अलोंग हमारा r का यूनिट वेक्टर होता है ऐसे ER, और फिर एक यहाँ पर होता है ई थीटा, और यहाँ से जाता है ई फाई, जो हम आगे किसी में बताएंगे आपको, ये होता है ई फाई। ठीक है, हमारी ये कोऑर्डिनेट स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स में आ गए, ये वाले आर फाई थीटा, जिसमें आर रेडियल कंपोनेंट, फाई एजिमुथ कंपोनेंट और थीटा पोलर कंपोनेंट। तो ये तीन कंपोनेंट्स आ गए। यहाँ पर तीन कंपोनेंट क्या हैं? एक्स, वाई और जेड। तो दोबारा एक बार हम इस डायग्राम में देख लेते हैं कि सिंपली हम करते क्या है कि हम एक ऑब्जेक्ट लेते हैं, उस ऑब्जेक्ट का हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं एक्स वाई प्लेन में, उस ऑब्जेक्ट को भी ओरिजिन से मिला देते हैं और परपेंडिकुलर के फुट को भी मिला देते हैं। मिलाने के बाद परपेंडिकुलर ऑफ फुट, जो फुट ऑफ परपेंडिकुलर है, वहां से हम वाई एक्सिस के पैरेलल एक लाइन
और एक्स एक्सिस के पैरेलल एक लाइन, इस तरह से दो लाइनें ड्रॉ करते हैं। और लाइनें ड्रॉ करने के बाद एक लाइन हमारी जो ए है वहां से हम ओ एन के पैरेलल ड्रॉ करते हैं, और बेसिकली यही 3-4 लाइनें हैं हमारी जो सारे ट्रांसफॉर्मेशन इक्वेशंस को निकालेंगी। ठीक है, तो अब हम कोऑर्डिनेट्स का ट्रांसफॉर्मेशन देखना चाह रहे हैं कि हमारे कोऑर्डिनेट्स ट्रांसफॉर्म होके क्या बनते हैं। तो आई थिंक मैं इसको हटा देती हूँ, क्योंकि मुझे सारे कोऑर्डिनेट्स आपके बताने हैं। तो मैं दोबारा से इसको यहीं पे एक्सप्लेन करती रहूँगी कि हम कैसे कोऑर्डिनेट्स बनाएंगे। देखिए हमारे कोऑर्डिनेट्स कैसे आएंगे। चलिए, सबसे पहले हम जो हमारे आर थीटा और फाई है उनको लिखते हैं इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, तो हम इसमें सबसे पहले हम लेते हैं दोनों में से हम कोई सा भी उठा सकते हैं। जैसे कि आप ये वाला एक ट्रायंगल उठा सकते हो, या तो आप ये वाला उठा सकते हो, ये वाला, ये राइट एंगल ट्रायंगल है, यानी कि ओ एम और एन में, ओ एम और एन में क्या है, ठीक है, ओ एम और एन में हमें फाई मिल रहा है आराम से वाई और एक्स के फॉर्म में। इन राइट एंगल ट्रायंगल ओ एम एन, ये है ओ, ये है एम और ये है एन। इसमें देखिए टेन फाई कितना है, टेन फाई इज इक्वल टू टेन फाई हमारा आ रहा है वाई अपॉन एक्स, वाई अपॉन एक्स। तो यहां से क्या आया, फाई इज इक्वल टू टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। टेन इनवर्स वाई अपॉन एक्स। तो ये देखा आपने कि हमारे पास फाई आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स। यहां से एक और रिलेशन आ रहा है, रो स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये भी एक रिलेशन आ रहा है रो स्क्वायर के फॉर्म में। और अगर हम दूसरे एक ट्रायंगल में जाएं, इन राइट एंगल ट्रायंगल, ये राइट एंगल ट्रायंगल ऊपर वाला OPA, OPA, इस राइट एंगल ट्रायंगल में हमें क्या मिल रहा है, इसमें हमारे पास एक है R, ये रो है, ये रो है, यहां पर ये हमारा रो है, नीचे भी रो था और ये भी रो है, ये रो है। ठीक है, तो यहां से हमारे पास आ रहा है यहां से आ रहा है रो है इसमें हाइपोटेन्यूज, रो स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। एक सेकेंड, और ये 90 डिग्री है ना, नहीं गलत लिख दिया मैंने। हमारा आ रहा है आर स्क्वायर इज इक्वल टू जेड स्क्वायर प्लस रो स्क्वायर, यस ये है आर हाइपोटेन्यूज है। इसमें आप 2 को यूज कर दो, तो आर स्क्वायर क्या बना, जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो यहां देखो आर आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड,
यहाँ से क्या आया, r इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। ये और एक इक्वेशन आ गई, एक और रिलेशन आ गया ये। ठीक है, अब हमें लेना है थीटा, क्या है, फाई आ चुका हमारा, आर आ चुका, थीटा लेना है, और थीटा यहीं पर दिखाई दे रहा है इस वाले ट्राइंगल में। तो यहाँ से हम थीटा की वैल्यू लिखते हैं। कॉस थीटा अगर मैं लेती हूँ तो कॉस थीटा हमारा आ रहा है, कॉस थीटा ये 90 डिग्री है, ये आ रहा है z अपॉन आर, दिस इज z अपॉन, यस, कॉस थीटा इज इक्वल टू z अपॉन आर। तो ये क्या बना, z अपॉन आर, आर कितना है हमारा, आर है स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई, इसको हम साइन के फॉर्म में भी ले सकते हैं, इसमें भी ले सकते हैं। तो यहाँ से थीटा कितना आ गया, कॉस इनवर्स, ये काफ़ी काम आएंगी ये जो इक्वेशंस हैं, यानी कि जो ये ट्रांसफॉर्मेशंस है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब ये देखिए आप, फोर्थ हुआ ये कभी कभी लैगिंग करने लगता है बहुत ज़्यादा। तो ये जो इक्वेशंस है फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ, इसमें आप देखिए ये फाई कोऑर्डिनेट आ गया, फाई आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स एंड वाई, यहाँ आर आ गया इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई एंड जेड, और यहाँ पर थीटा आ गया। तो हमने तीन जो हमारे स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट थे उनको इन टर्म्स ऑफ कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट निकाल लिया यहाँ पे। ऐसे ही हम रिवर्स कर सकते हैं, यानी कि हम एक्स वाई और जेड को इन टर्म्स ऑफ आर थीटा और फाई निकाल सकते हैं। अब वो कैसे निकालेंगे, यहाँ से हम इसको अब रब कर देते हैं क्योंकि हमें इसकी ज़रूरत नहीं है, डायग्राम से ही देख लेंगे इसको कि क्या है ये, इसकी वैल्यू। देखिए अब ये कैसे होगा, हमें निकालना है x, y और z इन टर्म्स ऑफ r, थीटा एंड फाई। ठीक है, तो सबसे पहले हम पहले हम लेते हैं, यहाँ पर ले लेते हैं इन ट्रायंगल OPA। इस OPA ट्रायंगल में मैं रो की वैल्यू निकाल लेती हूँ क्योंकि मुझे रो की वैल्यू नीचे यूज करनी पड़ेगी। ठीक है, तो रो की वैल्यू इसमें आ रही है, रो इज इक्वल टू, देखिए ये है π/2 ये वाला एंगल, ये है थीटा, तो रो मेरा आ रहा है, रो इज इक्वल टू r साइन थीटा, रो इज इक्वल टू r साइन थीटा। ठीक, यहीं से z भी लिख सकती हूँ मैं, यस, z आ रहा है r cos थीटा। ओ, ये तो एक निकल आया, देखो आप, z है कन्वेंशनल, r है पोलर, थीटा भी पोलर, तो z का तो वैल्यू निकल आई इन टर्म्स ऑफ r एंड थीटा, एक ये हो गया। अब हम आ जाते हैं इन ट्राइंगल, अब नीचे वाले में आ जाओ, OMN, ये भी राइट एंगल ट्राइंगल है, OMN, OMN ट्राइंगल में ये जो नीचे OMN ट्राइंगल है, इस वाले में, इस वाले ट्राइंगल में ये जो नीचे है, इसमें देखो आप, ये है x, ये बेस है, और ये आ रहा है परपेंडिकुलर, और ये आ रहा है हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब ये हो गया, मैं x की वैल्यू भी रो के टर्म में निकाल सकती हूँ और y की वैल्यू भी रो के टर्म में निकाल सकती हूँ। x यहाँ पे कितना आ रहा है, ये 90 बना रहा है, ये x की वैल्यू आ रही है रो कॉस फाई, और y की वैल्यू आ रही है रो साइन फाई। ठीक है, इसको लिख लेते हैं, x इज इक्वल टू रो कॉस फाई और y इज इक्वल टू रो साइन फाई। इनमें यूज कर दें हम फिफ्थ को, क्योंकि फिफ्थ में रो है, यूजिंग 5, x इज इक्वल टू रो की जगह हमने क्या लिखा, r साइन थीटा कॉस फाई, और y कितना आ गया, r
साइन थीटा, ये आप बहुत यूज करते हैं जब आप स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स कंसीडर करते हैं, तो आप ये सब बहुत ज़्यादा यूज करते हैं। इसमें आप ये देखो, ये हमारी एक x की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, ये y की वैल्यू आ गई इन टर्म्स ऑफ आर एंड थीटा, और ये z की वैल्यू आ गई। तो ये जो 6 है, ये जो 9 है और ये 10 है, ये क्या है? ट्रांसफॉर्मेशंस ऑफ कन्वेंशनल कोऑर्डिनेट्स इन टर्म्स ऑफ स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट। ये यूज होंगे जहां कहीं भी हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को यूज करना चाहेंगे। ठीक है, अब हम इसमें आ जाते हैं वापस स्फेरिकल पेंडुलम के मोशन में। आपने देखा कि स्फेरिकल पेंडुलम, एक और यहाँ पर इंपॉर्टेंट बात है कि ये मैंने लिया तो था एक क्यूबॉइड टाइप का, और उसमें मैंने ये दिखा दिया कि ये स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि सपोज आपका आर फिक्स हो जाता है, आर को फिक्स होने पर जब आप आर को मूव कराओगे तो वो किस सरफेस पर मूव करेगा? वो नेचुरली स्फीयर पर मूव करेगा। तो जो कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने अभी अभी दिखाया है वो किसको रिप्रेजेंट कर देगा? स्फीयर को रिप्रेजेंट करेगा, क्योंकि स्फीयर की सरफेस को, तो इसलिए वो स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट कहलाया है। ये इसमें इंपॉर्टेंट बात है, यानी आर फिक्स हो जाता है तब हमारा ये एक स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट है। वो और बात है कि आर आर्बिट्रेरी है, आर की कोई वैल्यू होगी तो हमें आर को वेरिएबल मानना पड़ेगा, बट इटसेल्फ आर इज फिक्स्ड। ठीक, तो जब हम मोशन ऑफ स्फेरिकल पेंडुलम डिस्क्राइब करना चाहते हैं फ्रॉम लेग्रांजियन पॉइंट ऑफ व्यू, तो हमने एक चीज तो देखी कि हमारे कोऑर्डिनेट क्या क्या है। हमारे कोऑर्डिनेट आए, एक सेकेंड, हमारे कोऑर्डिनेट आए आर, और एक आया फाई, और एक आया थीटा। ठीक है, इसको लिख लेते हैं दोबारा। जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो हुए आर, फाई और थीटा। ठीक है, इन कोऑर्डिनेट्स में जो जब हम स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स लेते हैं तो उस केस में जो हमारा आर है वो अगर फिक्स होना है, क्योंकि स्फीयर में ले रहे हो आप, तो आर अगर फिक्स होना है तो हमारे जो कोऑर्डिनेट बचे वेरिएबल कोऑर्डिनेट्स, वो क्या बचे? फाई और थीटा। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना है इसका? 2। और कौन से जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं? एक तो है फाई और एक है थीटा। तो यहाँ से ये पता चल गया कि जब हम लेग्रांजियन इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करेंगे तो हमें पास 2 आनी चाहिए, क्योंकि हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट 2 ही हैं। तो यहाँ से हमारी लेग्रांजेस इक्वेशन ऑफ मोशन क्या बनी? लेग्रांजेस इक्वेशंस ऑफ मोशन दो बनेगी। एक बनेगी थीटा फाई डॉट फाई के रिस्पेक्ट में, और दूसरी बनेगी, ये सब हमारे हॉलोनॉमिक सिस्टम में काम हो रहा है, थीटा के रिस्पेक्ट में। ये 2 इक्वेशंस बनेंगी, और हम यहाँ पर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए वो लिख लेते हैं वापस। फॉर स्फेरिकल पोलर कोऑर्डिनेट्स, x क्या था? x वॉज आर, x हमने निकाला था r साइन थीटा कॉस फाई, r साइन थीटा कॉस फाई। y था r साइन थीटा साइन फाई, साइन थीटा साइन फाई, और z था r cos थीटा, एंड z was r cos थीटा। ठीक है, यहाँ पर l क्या है? यहाँ पर हम वापस इसको 1 2 3 लिख लेते हैं। ये तो है कोऑर्डिनेट ट्रांसफॉर्मेशंस, और ये हैं इक्वेशंस, लेग्रांजेस इक्वेशंस।
ये है 4, this is 4 and this is 5. Now what is L? L is equal to T minus V. पता ही है हमको T minus V. जब हम स्फेरिकल पेंडुलम लेते हैं तो ये आपका अगर फलक्रम है, इसकी जो हाइट आती है मैक्सिमम वो कितनी आती है? Z. यदि ये Z एक्सिस आप नीचे ले लो ऐसे, और ये मैंने ले लिया रेफरेंस लाइन, तो इसकी जो ये है हाइट है ये Z के बराबर हो गई, यानी जो भी जाएगा वो इसी तरह से जाएगा इसके अलोंग। तो Z जो होगी वो कितनी है? Z इज इक्वल टू आर कॉस थीटा। तो हमारा जो V बना, V में हम क्या लेते हैं? एम जी एच, एच में हम लेते हैं वर्टिकल हाइट, तो V कितना बना? एम जी एच, एच का मतलब क्या है? एम जी जेड, जेड कोऑर्डिनेट, और जेड कोऑर्डिनेट कितना है? आर कॉस थीटा। मैंने नीचे की तरफ पॉजिटिव जेड ले लिया है, तो इसलिए मुझे पॉजिटिव सिंबल से काम चल जाएगा। एम जी आर कॉस थीटा। टी क्या होगा? टी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर, यानी हाफ एम, अब फिर से वी स्क्वायर क्या होगा? एक्स डॉट स्क्वायर वाई डॉट स्क्वायर, और आप वैसे भी निकाल सकते हो, वो जो हमने एक काइनेटिक एनर्जी का आर्टिकल कराया था वैसे भी निकाल सकते हो, और ऐसे भी निकाल सकते हो, हाफ एम। नाउ व्हाट इज दिस एक्स डॉट? 1 से निकालिए आप, एक्स डॉट कितना होगा? आर साइन थीटा, कॉस फाई को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, साइन फाई, फाई डॉट प्लस आर साइन थीटा को डिफ्रेंशिएट करेंगे, कॉस थीटा, थीटा डॉट, और कॉस फाई को ऐसे ही लिख लेंगे, कॉस फाई, यहाँ पर कॉस फाई। ठीक, इसी तरह वाई डॉट क्या आएगा? वाई डॉट इज इक्वल टू आर साइन थीटा कॉस फाई, फाई डॉट प्लस आर कॉस थीटा, थीटा डॉट, और साथ में है साइन फाई, साइन फाई। जेड डॉट आर साइन थीटा माइनस के साथ, माइनस, और फिर थीटा डॉट। तो ये सारी वैल्यूज आ गई हैं, ये सारी वैल्यूज को आप यहाँ पर रख दीजिए स्क्वायर करते हुए यहाँ पर, और आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। मैं लिख देती हूँ क्या आएगी। इट विल बी हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर प्लस फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ठीक है, अब हमें क्या करना है? एल निकालना है। एल क्या है हमारा? टी, यानी कि हाफ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट स्क्वायर फाई डॉट स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा माइनस वी, वी ये है, वी यूज कर दिया, माइनस एम जी आर कॉस थीटा। ठीक है, अब यहां से हमें क्या करना है? इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू फाई डॉट। डेल्टा एल डेल्टा फाई डॉट कितना आएगा? ये बना हाफ एम आर स्क्वायर, फाई डॉट के रिस्पेक्ट में करना है तो केवल आ गया 2 फाई डॉट साइन स्क्वायर थीटा, बस इतना ही आएगा। डेल्टा एल डेल्टा फाई निकालना है अगर, तो फाई तो इसमें कहीं है ही नहीं, फाई तो खत्म हो चुका है। जो कोऑर्डिनेट नहीं रहता है ना उसको हम साइक्लिक कहते हैं, आगे हम पढ़ेंगे इसको। जो एल से एब्सेंट हो जाता है वो साइक्लिक कहलाता है। डेल्टा एल डेल्टा फाई 0 आ रहा है। उसके बाद व्हाट इज डेल्टा एल डेल्टा थीटा डॉट? डेल्टा एल डेल्टा थीटा डॉट हुआ एम आर स्क्वायर थीटा डॉट, केवल ये एग्जिस्ट करेगा। एंड डेल्टा एल डेल्टा थीटा, दिस विल बी
m r square phi dot square sin theta theta dot, नहीं साइन थीटा केवल, साइन थीटा, थीटा डॉट नहीं आएगा, गलत लिख दिया है मैंने, ये नहीं आएगा थीटा डॉट, क्योंकि हम टाइम के लिए नहीं कर रहे ना। आगे आएगा माइनस, प्लस हो जाएगा एम जी आर साइन थीटा, यहाँ पर बल्कि 2 साइन थीटा के साथ आएगा कॉस थीटा। तो ये हमने सारी वैल्यूज निकाल ली। हमें क्या करना है अब, इन वैल्यूज को, ये जो सारी वैल्यूज आई हैं, इन सारे वैल्यूज को हमें यहाँ पर और यहाँ पर सब्स्टिट्यूट करना है, और सब्स्टिट्यूट करने के बाद उनका डेरिवेटिव लेना है, और डेरिवेटिव लेने के बाद एक सिंपल डिफरेंशियल इक्वेशन, सिंपल इक्वेशन आ जाएगी, उसकी तरीके से सॉल्व करना है। तो ये आप लोग इसमें रख सकते हैं, 4 और 5 में आप इन्हें सब्स्टिट्यूट करिएगा सारी वैल्यूज को, और फिर इसको पूरा करके बताएं आप कि आपका क्या आंसर आता है। ये जो कुछ आएगा, जो पाथ आएगा, दैट विल बी द पाथ फॉर द स्फेरिकल पेंडुलम। तो ये बेसिकली मुझे, क्योंकि मैं पिछले आर्टिकल्स में बता चुकी हूँ यूज कैसे करते हैं, इसलिए मैं इसको यहीं पे छोड़ रही हूँ। आप खुद से ये सारी वैल्यूज रखिएगा। हमें बेसिकली जो समझना है वो ये समझना है कि पहली बात, हमारे जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स क्या हैं। हमारे जो जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट्स हैं, जैसे ये हमारे 2 जनरलाइज्ड कोऑर्डिनेट बन रहे हैं यहाँ पे, ये वाले, तो उन कोऑर्डिनेट के रिस्पेक्ट में हम कैसे करके ये इक्वेशंस लिखते हैं, बेसिक बिंदु ये। और फिर हमारा जो एल है, वो हमारा एल कैसे फ्रेम होता है, वो हमारा एल क्या है, ये है टी माइनस वी। तो हमें टी कैसे कैलकुलेट करना है, हमें वी कैसे फाइंड आउट करना है, रेफरेंस फ्रेम हमें कैसे मानना है, और उसके बाद टी और वी निकालना है। एल की वैल्यू निकल आएगी, ये एल की वैल्यू है, यहाँ से हम ये सारे वैल्यूज निकालेंगे, जितनी भी हमारी वैल्यूज हमें सब्स्टिट्यूट करनी है, और 4 और 5 जो इक्वेशन है इसमें रख के इन्हें सॉल्व कर देना है। सॉल्व करके जो भी पाथ आएगा हमारे पास, that will be the path described by spherical pendulum. So this is all about spherical coordinates and spherical pendulum. Thank you so much.